Good evening, I'm Shreya Dhondia. Can equity be exclusionary? That, ladies and gentlemen, is a question that has sparked a fire across campuses in India today. At the eye of the storm, or rather the protests, are stricter new rules that aim to weed out caste-based discrimination in colleges and universities across the country that come on the back of the Supreme Court's intervention. The new regulations by the UGC actually get many things right, like defining discrimination explicitly and ensuring mechanisms for preventing and for redressal. The new rules place responsibilities squarely on institutional leadership and impose a penalty for failure. So, every college now, according to new UGC regulations, is to have an equal opportunity center. It is this center that will handle complaints by the SC, the ST, the OBC, women, and the specially abled. So far, so good. But therein lies the problem. Those protesting today, and there have been protests across North India today, are asking, why have the upper castes been excluded from this list? Are the upper caste victim-proof? Can they not be taunted or teased or discriminated against based on their caste? Even the equity squad that the UGC new regulations mandate does not have provisions to include members from the upper caste. Making it worse, there are no penalties on those who will be filing false cases. Needless to say, the new UGC rules have divided campuses and students and teachers. One side which is saying that this is protection for the Dalits and the OBCs and the tribal people. The other side that is saying that this is reverse bias playing out. Listen in to some voices first that are demanding a rollback. हाँ, रोल बैक और रोल बैक मॉडिफिकेशन के साथ होना चाहिए। अगर SC STs के लिए, जैसे भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि नहीं है सक्रिय, मैं हिंदू महाविद्यालय से मैंने अपना BA किया हुआ है, वहाँ पे पूर्ण रूप से सक्रिय है और ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम कमिंग। काफ़ी पहले ऐसे लॉज आ जाने चाहिए थे, इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए थे। इसी साल हमने रोहित वेमुला की 10 साल की मार्टिरडम डे को सेलिब्रेट किया है, कमेमोरेट किया है। तो इस दौरान इन 10 सालों में और भी ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते ही गए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मर्जर्स हुए हैं, स्टूडेंट्स के, प्रोफेसर्स के, जिनको आत्महत्या करनी पड़ी है। Discrimination of all form, whatever form, that should not be promoted, and government has every right to make laws to ensure that no such a discrimination happen ever. In my personal opinion, I'm fully committed to understand that yes, no discrimination should be there at all. Now, ladies and gentlemen, caste is a sensitive issue in India, and so is reservation for multiple reasons. But what cannot be denied is that in the last 5 years, and this is data, the government's data, in the last 5 years, there has been an 118% increase in caste-based discrimination in campuses across India. What also, ladies and gentlemen, cannot be denied is the tragic fallout of this caste-based discrimination. We just heard about Rohit Vemula. He was a PhD scholar at the Hyderabad University. He committed suicide. There was Pooja Tadvi, a resident doctor in Mumbai, who committed suicide because of alleged caste discrimination. It is their mothers, ladies and gentlemen, who had approached the Supreme Court seeking stricter rules. Today, most political parties are unsure of how to react. No one can afford to annoy the marginalized, and no one wants to annoy the upper caste either. So both the BJP and the Congress today are not participating in this debate. And even within these two parties, ladies and gentlemen, there are differing voices and opinions that are emerging. Listen in. किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूजीसी ने जो ये एक फैसला किया, मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोच के ये फैसला किया, और मुझे नहीं लगता है इससे कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई मायने नहीं निकलता, इससे किसी को लाभ नहीं है।
ना ही सवर्ण को, ना ही ओबीसी को, ना ही एससी एसटी को, किसी को कोई लाभ नहीं है। जो नए रूल्स बनाए हैं वो शिक्षा की बुनियादों को हिला देंगे। शिक्षा का कानून बनता है बगैर शिक्षा के एक्सपर्ट्स, राजनीतिक दल उनकी मर्जी और कंसेंट के बिना बनता है। Indian society is caste based and hierarchy based, divided according to the varna, and it's a fact. Discrimination on caste is a reality. So I think this needs to be welcomed. गाइडलाइंस आए हैं, मैं मानती हूं कि हाँ काफी टाइम जाति भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है और उस पे किसी तरीके की गाइडलाइंस होती है, पर ये गाइडलाइंस में ही अगर भेदभाव हो कि आप एक तरफ को सोचें वही ऑप्रेस्ड हैं और दूसरी तरफ को सोचें ये ऑप्रेसर्स हैं, यानी ये जो जजमेंट है इस गाइडलाइन के माध्यम से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूँ अगर 7 केस SC ST OBC के होते हैं, हो सकता है 3 हो या 2 हो या 1 हो जो जनरल कैटेगरी का हो, और कौन निर्धारित करेगा कि किस तरीके से ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या शब्दों से, क्या एक्शन से, या किसी एक परसेप्शन से। दूसरा जो मेरा मानना है कि अगर कोई फॉल्स केस होता है और इट्स ओपन फॉर मिसयूज, ऐसी चीजें ओपन फॉर मिसयूज होती हैं और अनेक उदाहरण है ऐसे, अगर ये फॉल्स केस पता चलता है उसका पेनल्टी क्या होगी, क्योंकि एक स्टूडेंट के करियर की बात होती है, स्टूडेंट का करियर अगर किसी तरीके से डिस्टर्ब होता है एक फॉल्स केस के अनुसार, तो जिसने लगाया है वो उसकी पेनल्टी क्या होगी। ये जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय करने वाले कौन बैठे हैं, तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखकर कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हम और डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस पे ला रहे हैं, ये गाइडलाइन को विड्रॉ होना जरूरी है और पूरे देश भर में इसका माहौल बना हुआ है और देश भर में यही मांग हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, ये सर्वसामान्य जो वर्ग है इसने क्या पाप किया है? क्या जनरल कैटेगरी होना अब कोई पाप हो गया है? क्या अब इस देश में जनरल कैटेगरी कहना ये अब हमारे लिए कोई गाली बन गई है? मतलब आप किसको खुश करना चाहते हैं? जिस भाजपा की सरकार को स्वर्ण समाज ने झोली भर भर के वोट दिया, सब कुछ उनको आशीर्वाद दिया कि आप फलिए फूलिए, आप उन पर ही पीठ पर छुरा भोंकेंगे, उन्हीं के लोगों की भ्रूण हत्या करना चाहेंगे? My guest this evening, Ashok Bharti, is the chairman, National Confederation of Dalit and Adivasi Organization. He's joining us from Delhi. Good evening, Mr. Bharti. Good to have you on the show. Badshah Alam is national spokesperson of the RJD. RJD, one of the few parties that is actually coming on debates and has taken a side in the matter. Otherwise, most political parties this evening are confused, as our viewers have just seen. So both Badshah Alam and Ashok Bharti batting on the same side. Thank you very much. Of course, I must add that this is the IPL. Ultimately, we are all Team India. Dr. Govardhan Das is director at IISER Bhopal, joining us on the broadcast. Thank you very much. Sanjeev Kaushik is a political analyst, joining us on the broadcast. आज अजीब बात है संजीव जी, आज आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैटिंग करेंगे. In the last 6 months that I have been in Times Now, you have always taken the opposite view, but today you are batting for the government. Thank you very much. And Anuradha Tiwari is an activist. She's joining us on the broadcast. Anuradha, you've been very vocal on social media for the last 2 days when it comes to these new UGC rules. Simple question is, Anuradha, dikkat kya hai? Nowhere are the rules saying, I'm playing the devil's advocate here, nowhere are the rules saying that a general category student cannot go and complain to the new committee that is being formed by the UGC in colleges and universities. So why the hangama? Why say that this is reverse bias playing out? देखिए, आपने नमस्ते श्रेया जी, सबसे पहले तो आपने पूछा दिक्कत क्या है। दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत बहुत सारी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, आप ये बताइए पूरे कॉलेज कैंपस में 90% जो पॉपुलेशन होगी SC ST OBCs की, उनको आपने प्रोटेक्ट कर दिया इन गाइडलाइंस में। सिर्फ आपने जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया। तो किस लॉजिक से 90% विक्टिम होंगे और 10% हमेशा उनको ऑप्रेस करेंगे? मतलब मैथमेटिशियंस के लिए एक जोक है, दे मस्ट बी क्राइंग इन द कॉर्नर समवेयर। तो ये कैलकुलेशन कहीं फिट नहीं बैठ रहा, पहली बात तो ये। उसके बाद इस गाइडलाइन के मुताबिक इक्विटी कमिटीज बनाई जाएंगी। उन इक्विटी कमिटीज में जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ SC ST OBCs के होंगे, जनरल कैटेगरी का मेंबर ही नहीं है। सोचिए, एक्यूज जो है वो जनरल कैटेगरी का है, पर जो सारे जजमेंट पास करेंगे उसमें जनरल कैटेगरी का है ही नहीं। सो हाउ डू वी इंश्योर फेयर जस्टिस? तो जजमेंट तो हमारे फेवर में आने ही नहीं वाला। तीसरी बात ये है
कि इसमें जो आपने इक्विटी स्क्वाड मेंबर्स को जो बना रहे हो वो पूरे कैंपस में घूमेंगे, वो कैंटीन में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, एक तरीके का सर्वेलेंस सिस्टम होगा कॉलेज में, राइट? तो वो सर्वेलेंस किसके ऊपर होगा? क्योंकि कल्प्रिट तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे होने वाले हैं। तो सर्वेलेंस एक जेल की तरह आप एक कैंपस को बना दोगे, उस जेल में सिर्फ निगरानी रखी जाएगी जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर, क्योंकि कल्प्रिट तो वही होने वाले हैं, SC ST OBC तो हमेशा विक्टिम रहने वाले हैं। अनुराधा, एक चीज क्या हम अज्यूम कर रहे हैं? क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो नए रेगुलेशंस हैं ये सिर्फ जनरल कैटेगरी को अक्यूजर बनाते हैं? क्योंकि ऐसा है कि किसी कॉलेज के कैंपस में या किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऐसा तो है नहीं कि जितना ऑपरेशन होता है वो अपर कास्ट करता है, एक ओबीसी भी कुछ बोल के ऑपरेशन कर सकता है या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दिखा सकता है। तो यहां पर ये जो रूल्स हैं ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है अपर कास्ट इज द ऑपरेसर। ऑपरेसर तो कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। तो ये तो हमें यूजीसी से पूछना पड़ेगा ना कि क्या जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? तो आपने किस बेसिस पे उनको आपने छोड़ दिया? क्या ब्राह्मणों के अगेंस्ट नारे नहीं लग रहे हैं जेएनयू में? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये सब नारे नहीं लग रहे, तो आपने किस बेसिस पे उनको छोड़ दिया है? चलिए, तो वो कहाँ जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? इक्विटी कमेटी में तो उनके लिए कोई जगह है? अशोक जी आप जवाब दे दीजिए। लेट अशोक जी कम इन। थैंक यू श्रेया जी। और मैं तो बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से प्लेनली सॉरी दैट व्हाई द अपर कास्ट आर स्केर्ड ऑफ इक्विटी, बिकॉज डू दे बिलीव इन इक्विटी और नॉट? इफ दे डू बिलीव इन इक्विटी, what is the problem? One. The second, I can bet with you, Miss Tiwari has not read this document. Okay. You are talking about the UGC regulations, by right? The UGC. Okay, yeah, go ahead. Had she read those documents, had she read this document, she would have not commented the way she has commented. For example, let me come point by point. This document, this guidelines protects women from discrimination. Correct. Not scheduled caste, scheduled tribe women or OBC women. Women. Intersectional category. This guideline protects physically challenged Divyang. They are not scheduled caste, scheduled tribe, OBCs. Okay. Now, let me come to the equity thing that she's mentioned. Correct. Okay. Because the head of the institution, how can she say that head of the institution is only scheduled caste, scheduled tribe, OBC? Then 3 professors. Will Miss Tiwari tell me how many professors are from the scheduled caste, scheduled tribe, OBCs? I can go on, but इनका प्रॉब्लम ये है, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको समता से परेशानी है, क्योंकि सदियों से जो सबके ऊपर दादागिरी दिखाते आए हैं, वो समता से उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिवर्स दादागिरी अब उन पे दिखाई जाए। यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अपर कास्ट जो मेल है, क्योंकि विमेन तो आ गई है ना, आ गई रिजर्वेशन उस कैटेगरी में, तो अपर कास्ट मेल जो डिसेबल्ड नहीं है, एबल बॉडीड है, सबसे बड़ा विलेन फिर वो हुआ। अशोक भारती जी, ये तो गलत है अज्यूम करना। नहीं, मैं उसमें EWS भी शामिल है। EWS में शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, OBC नहीं है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन कैटेगरी में शामिल है। EWS में तो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है। EWS को मेंशन नहीं किया यूजी, नहीं, UGC की रेगुलेशन में EWS कहीं मेंशन नहीं है। एनीवे, लेट अनुराधा रिस्पॉन्ड। श्रेया जी बोलिए मैं वही कह रहा हूं कि लोगों ने पढ़ा नहीं है गाइडलाइन। लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े ज्ञान दे रहे हैं, बिना पढ़े ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, धारणाओं पर ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, EWS तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। मैंने OBC पढ़ा है, मैंने ट्राइबल पढ़ा है, मैंने SC ST पढ़ा है, मैंने विमेन पढ़ा है, मैंने डिसेबल्ड पढ़ा है। सुनिए श्रेया जी, मैं पढ़ के सुनाया तो ऑब्जेक्टिव, नहीं ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए। पढ़ के सुना नहीं, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, मैं समझ गई आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। मैं रेगुलेशन
ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव के बिना रूल नहीं हो सकते। रूल तो पढ़िए लेकिन रूल which do not conform to objectives. ओके, गो अहेड। ठीक है, अनुराधा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। हाँ, इन्होंने खुद बोला कि इसमें विमेन भी इंक्लूडेड है, राइट? इसमें विमेन पीडब्ल्यूडीज इंक्लूडेड है। तो क्या मैं जनरल कैटेगरी मेल के राइट्स की बात नहीं कर सकती? वो मेरे ही कम्युनिटी से आते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपनी पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। और मैं कम्युनिटी में सबको इंक्लूड कर रही हूँ। आप सबको विलन क्यों मान रहे हो जनरल कैटेगरी मेल को? आपको क्यों लग रहा है कि मैं मेरे आई एम प्रोटेक्टेड तो मैं उनकी बात नहीं करूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है, ईडब्ल्यूएस इसमें कहीं मेंशन नहीं है, ये आप टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ SC ST OBC PWD और विमेन इसमें इंक्लूडेड है। सेकंड, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपने बात भी नहीं की। भारती जी, I'll come back to you. आप अनुराधा, भारती जी, I'll come back to you. Let Anuradha finish what she's saying. I promise I'll come back to you. रुक जाइए भारती जी, I'll come back to you. I know you are reading the objectives, but I want you to read the regulation itself. But anyhow, Anuradha, go finish your point. Second point that he didn't even dare to touch is कि अगर कोई false complaint करता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? एक ही बंदे पे आप 10 कंप्लेंट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप 17-18 साल के बच्चों के ऊपर आप लीगल एक्शन की बात कर रहे हो, और अगर वो फेक साबित होता है तो कोई एक्शन नहीं है। ये कैसा रूल बनाया आपने? आप इसके बारे में बात करिए ना कि आपको सही लगता है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से नहीं है, आपके बच्चे जनरल कैटेगरी से नहीं है, तो आपको किस बात का डर? हमें तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बात करनी पड़ेगी ना। अशोक जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। First of all, let me expose the lies that Ms. Tiwari or alike are spreading across the country. The objective clearly says to eradicate discrimination only on the basis of religion, race, gender, place of birth, place of birth, caste, disability, particularly against the member of scheduled caste, scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, with disability, persons with disability or any of them, and to promote full equity and inclusion amongst the stakeholders in higher education institutions. Are sovereign not stakeholder of the higher education? They are equally harsh. They are much more stakeholder than the scheduled caste, scheduled tribe, OBC. They are the majority of the students. So they are the bigger stakeholder. Why are they scared of equity? Dr. Das, I think you were reading the regulations once again and you wanted to come in. Go ahead, please. Yeah, this is good evening to you and my fellow panelists. Yes, irrespective of who is in center or in the government, the atrocities and discrimination against the Dalits and caste is real. Absolutely, fact, I don't think anyone can deny that. Yeah, in 2019, IIT Delhi says that 75% cases, students are historically disadvantaged, castes are discriminated on campus. Various cases. Well, this is a government are trying to do some kind of regulation to minimize the thing. Yes, I think it should be promoted, and of course, zero tolerance of discrimination should be implied. Okay. But one thing I would like to really remind that madam, sorry, I forgot her name. Anuradha. Yes, this is, yes. So you are saying this is one has to really include the general caste. True. But how many times a scheduled caste or a tribe a complaint or you got a complaint, a tribe boy or a Dalit boy or girl really did all these atrocities, killing and all kinds of things to the general caste? Probably none. So that is a point. That's a good point you make. Because Sanjeev ji, just respond to that. That's a good point that is being made. For example, in JNU, there was this study done on caste-based discrimination, etc. Now, the question is, how many, for example, Brahmins were discriminated against based on their caste or their religion? None. So, therefore, the argument made, Sanjeev ji, is historically, to, Brahmins ke against caste-based discrimination nahi hota hai.
तो उनको इन स्क्वाड्स में हम क्यों इंक्लूड करें, उनको हम रेगुलेशंस में प्रोटेक्शन क्यों दें? दैट इज द आर्गुमेंट दैट इज ऑल्सो मेड, that is the argument being made by Dr. Das. देखिए श्रेया, सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई है। पहले वो हिंदू मुसलमान करके 15 सालों तक शासन में सत्ता में रही, और इसके बाद में जो सरकार ये कहती थी कि बटेंगे तो कटेंगे, अब इतने खानों में बांटने का प्रयास कर रही है केवल सत्ता के लिए कि सामने दिखाई दे रहा है कि जो मित्र, जो क्लास साथी, जो एक साथ पढ़ने वाला, एक रूम में रहने वाला विद्यार्थी जो था, आज क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों की हम बात कर रहे हैं, आज एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं और अपने अपने नीतियों को लेकर के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे कई मित्र जो हमारे बहुत नजदीक थे, उनसे हमारी बहस हो रही है और लगातार वो कह रहे हैं कि नहीं। तो सरकार ये जो कोशिश कर रही थी, सरकार उसमें कामयाब होगी। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप हमें बताइए कि एक अभी कहा जा रहा था कि क्या समानता का अधिकार नहीं देना चाहते आप, या जो अपर कास्ट है वो समानता में भरोसा नहीं रखते? साहब, सच बात यह है कि हमारा मित्र यदि कोई दलित हो, हमारा मित्र कोई एससी हो, हमारा मित्र कोई एसटी हो, यदि वो हमें रंग भेद के आधार पर हमें कलुआ दोस्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यदि 2 बार उसे अपना कलुआ दोस्त कह दिया, वो जाएगा, अपना नाम भी नहीं बताएगा, हमारे अगेंस्ट में वो एप्लीकेशन भी दायर करेगा, हमारे ऊपर कार्रवाई भी होगी। और ठीक वैसे ही जैसे ईडी के पास पीएमएलए एक ऐसा लगा दिया गया है कि आपको उस आरोप में एक बार यदि आपकी सुनवाई शुरू हो गई तो गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाएगा। अब आपको सिद्ध करना है कि आप सही है या गलत है। जिसने आरोप लगाया, यदि वो आरोप खारिज हो जाता है, यदि वो आरोप गलत निकल जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी डाल देते आप, कोई बहस ही नहीं होता। नहीं संजीव जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं बीजेपी हैज सक्सीडेड इन इट्स मंसूबा, बट व्हाट कैन द बीजेपीज मंसूबा मीन? आप अगर उत्तर प्रदेश को ही उठा के देख लीजिए तो ब्राह्मणों ने मेजॉरिटी में किसको वोट किया? बीजेपी को वोट किया। तो व्हाई विल द बीजेपी ट्राई एंड अनॉय द ब्राह्मण्स और द अपर कास्ट? What is happening mandated by the Supreme Court. The Supreme Court said that we need stricter rules, which is what the UGC is doing. तो इसमें बीजेपी की गलती कैसे हो गई, ये सवाल पूछ रही हूं आपसे। मैंने कहा कि जिस कंफ्यूजन की बात हम कर रहे हैं और जो पॉइंट हम बता रहे हैं या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ वो पॉइंट यदि सरकार हल कर देती तो ये कंफ्यूजन रहता ही नहीं। सारे लोग अपने अपने तरीके से रहते, शानदार तरीके से रहते, सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते। लेकिन जानबूझ करके ये लूप होल छोड़ देना, जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा करना और इन दोनों वर्गों को आपस में लड़ाने की जो कोशिश थी, सरकार उस मंसूबे में कामयाब हो गई है। सड़कों पर दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष पक्ष में है, एक पक्ष विपक्ष में है, लोग चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार एक बार कह रही है कि नहीं, हम गाइडलाइन जारी करने वाले हैं, जो स्पष्टीकरण है वो देना चाहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता और विद्यार्थी सड़कों पे है। तो ये जो खानों में बांटने, विभाजनकारी जो नीति है, मैंने कहा कि पहले क्या एक्ट नहीं थे क्या कि इसको लाने की जरूरत पड़ गई? तो जानबूझ करके इस तरह से रार पैदा करना, और ये केवल मैंने कहा कि सत्ता की खेल के लिए खेल है, केवल दूसरा कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है सरकार को। नहीं, मैं फिर पूछ रही हूं सरकार है ना, who does it benefit? Why will any political party this evening want to, except maybe the RJD, want to annoy the upper caste? I mean, in the political ecosystem we live in, no one wants to annoy anyone right now. Especially caste and reservation is extremely sensitive. RJD, बादशाह आलम जी, बाकी सब political parties तो हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी कुछ बोल नहीं रही हैं। आज देखिए शो पे भी नहीं आई हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोलिए। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी तक शो पे नहीं आ रही है क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। You have taken a pro-government stand on this one. Please help me understand why. देखिए श्रेया जी, ये जो 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं ये हर चीज को। मतलब इस वक्त वो ये यूजीसी रेगुलेशन ला के ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सबको आपस में, अब तक तो ये आपने देखा होगा कि बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते अभी तक चले आए। खैर मुसलमानों को इन्होंने एक तरफ किनारे लगा दिया, तो अब इनके अंदर जो है यूपी में क्या हो रहा है उस पर कोई बात ना हो। ये मामला 10 साल पहले आया था, जब रोहित वेमुला का जो वहां उसने खुदकशी करी थी, एक पीएचडी का स्टूडेंट था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। 10 साल हो गए, इनको 10 साल लग गए इस रेगुलेशन को बनाने में। जब हमारा संविधान कहता है कि सब इक्वल हैं, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, तो
सबको बराबर पढ़ने का हक है, अधिकार है, और यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सब सारी चीजें नहीं देखी जाती हैं। एक क्लासरूम में अगर 60 बच्चे बैठते हैं तो उसमें हर तरह के बच्चे बैठते हैं, हर बिरादरी को होते हैं, ओबीसी होते हैं, एसटी एससी होते हैं, स्वर्ण होते हैं, किसी के साथ कोई टीचर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन इस तरह का रूल इस वक्त लाने का इसकी टाइमिंग देखिए, इसका क्या मतलब है ये तो सरकार के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन इस पर इतना हाय तौबा मचाना इस रूल के ऊपर, ये भी कहीं से जायज नहीं है भाई। अगर आप बच्चों से पूछें, कैंपसेस में जो बच्चे हैं, भारती जी तो बहुत बच्चों से बात करते हैं, अगर आप बच्चों से पूछें तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो हैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करते दलित बच्चों के अगेंस्ट या ओबीसी बच्चों के अगेंस्ट। तो एक बात है कि डिस्क्रिमिनेशन इज अ रियलिटी ऑफ कैंपस, इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई शक होना चाहिए। हाँ, रिवर्स बायस पे हम लोगों को सवाल उठाने चाहिए, जो आज हम सवाल उठा रहे हैं वही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब मैं बोलिए। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो सरकार को इस तरह के जो है ना रेगुलेटरीज जारी करने की जरूरत नहीं थी। तो ठीक किया ना सरकार ने, फिर मैं आपसे पूछूं, ठीक किया ना सरकार ने? तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सरकार का जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। इस कानून को जो ये लाए हैं इसको चलने दीजिए। अगर इस पर कोई गड़बड़ी आती है तो इसको फिर बाद में रिवील किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, यूनिवर्सिटीज में आज कौन लोग बैठे हुए हैं? आप टीचर्स ले लीजिए, प्रोफेसर ले लीजिए, वाइस चांसलर ले लीजिए, ये एसटी एससी ओबीसी, इनका कितना रिप्रेजेंटेशन है? इस कमेटी का चेयरमैन वाइस चांसलर बनाया जाएगा। करीब 150 यूनिवर्सिटी है जिसमें 140 के आसपास से जो है स्वर्ण बिरादरी के लोग उसमें वाइस चांसलर बने हुए, वो चेयरमैन होगा। कहां से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा? सबको इक्वल राइट है, चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो। ठीक है अशोक भारती, आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट वर्ड। आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट वर्ड. Last month itself, we have had a full debate on the minus 40 percentile being the qualifying mark for NEET. We've already had that discussion. Now we are seeing this. My question to you is, Mr. Bharti, could the government have handled this better? Because today also we have seen Dharmendra Pradhan come out. He gave a statement saying, "मैं किसी के against discrimination नहीं होने दूंगा." Has the communication essentially been pathetic? For example, we have not even heard from the UGC chairperson. Where is he? Who is he? Why is he not coming out and clarifying, etc.? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो रेगुलेशन आया है जी, इसका अभी प्रचार होना बहुत बाकी है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जितनी भी टीवी डिबेट हो रही हैं, मैं बहुत सारी डिबेट में जा रहा हूं, और जितने भी आर्गुमेंट्स अपर कास्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं, प्राइमरीली ब्राह्मण के द्वारा दिए जा रहे हैं, प्राइमरीली ब्राह्मण के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये जो सारे के सारे जो आर्गुमेंट हैं, उन आर्गुमेंट्स का इस रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग केवल बायस के रहते ही बात कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग ऑन टू दी फैक्ट्स। फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। दे आर टॉकिंग विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी सब्सटैंशियल आर्गुमेंट्स। दे आर जस्ट because they are scared of their guilt feeling. They have guilt because they have been discriminating with the scheduled caste, they have been discriminating with scheduled tribe, they have been discriminating socially educational backward classes, they have been discriminating with women, they are discriminating with everyone. So that guilt is pushing them to raise a false bogey. But two wrongs don't make a right now, Mr. Bharti. I am not denying that OBCs and Dalits and SCs and STs have not been discriminated in this country. But ये तो नहीं कि reverse discrimination होगा और reverse bias होगा. But I think Anuradha wants to respond to you. Go ahead, Anuradha. Quickly. I need to wrap this debate. ये facts की बात कर रहे हैं. मैं इसमें एक fact add करती हूँ. तो जो ये guideline है, इसमें discrimination का जो definition है, इसमें implicit word use किया गया है. Implicit का मीनिंग जो है वो बहुत ही वेग है. Implicit का जो मीनिंग है वो बहुत ही वेग होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे साइड में आके कोई खड़ा हो गया, मैंने उसको बोला प्लीज हट जाइए, तो मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस डाल सकता है. नहीं. अगर मैं कहीं पे बैठ के यस, इतना ही वेग है. आप पढ़िए प्लीज. इम्प्लिसिट जो है ये बहुत ही खतरनाक, डेंजरस है. In fact, no, that's not true. Actually, the regulations have explicitly described what discrimination looks like. The word implicit has
has been used and it is a very dangerous word कि कोई भी He फील has कर not सकता read है, the document फील at कर all. सकता है कि मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सिर्फ फील करना है और वो बंदा जेल में जाएगा। All right. सोचिए इस तरीके की गाइडलाइंस कॉलेज You know what? We leave this debate here because I'm sure this is not the last time we are having this debate. And it's a good thing that we are debating about it, right? If there is one particular section that feels that there is a reverse bias, in this case, the general category feels there's a reverse bias, then we need to talk about it. And maybe if there are changes that are required in the regulation, the government will look at it. But I certainly don't think a rollback is going to happen as most general category students want. We'll leave it here for the moment. Thank you very much for putting your views forth. Ashok Bharti ji, thank you very much. Badshah Alam ji, thank you. Dr. Das, thank you. Sanjeev Kaushik, thank you. And Anuradha Tiwari, thank you very much for joining us. On that note, ladies and gentlemen, a quick break. There's more on the other side. Do stay with us.